Hi everyone, welcome back to the channel and this is podcast number 2 and हमारा ये podcast रहेगा बेसिकली रहेगा न्यू बिगनर्स के लिए प्लस फर्स्ट टाइम मैनेजर्स के लिए जो मैनेजर बन रहे हैं हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्फ हाउ टू लीड द टीम। कई बार क्या होता है हम मैनेजर से बन जाते पर हम सिंगल टीम के मैनेजर होते हैं या हम लोग टीम नहीं मैनेज कर पाते हैं। सो टुडे आई हैव विद मी हरदीप सिंह who is working with the Panasonic from long time, and he is a business chief for the camera, I guess camera department. Imaging business group. Imaging business. So imaging business for Panasonic Life Solutions. So he's been into the corporate from last 20 to 22 years, to be precise, or Yeah, इससे भी I ज़्यादा? have overall 24 years of experience for corporate world. Yeah. Corporate. So been 24. So today we are going to learn from him how the things are in the corporate and how the things we can pick up for ourselves so that हम आगे अपने जितने भी peers हैं या आपके साथ जो ऊपर मैनेजिंग है आप वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो अपने आप को कैसे peers में अपने आप को एक बेटर क्वालिटी में दिखा सकते हो एंड आपको उससे पता लगेगा कि आपको कैसे करना है। सो stay tuned, pick up the things whatever you want, and if you have any questions drop the questions in the comment box so that we can ask them and have another session with the Hardeep Singh. So let's welcome Mr. Hardeep Singh. Hi Hardeep, how are you? Hi Anmol. Hi Kuvar. Thank you. Thank you for inviting me for this particular podcast. I really feel that this is the need of the hour, wherein every new joinee in a corporate world looks for guidance with respect to how he has to, how he should perform, how he should grow. Everybody wants vies to for grow. growth. Correct. That's a good product. That's a good podcast that you have selected for. Thank you very much. And I feel because into the corporate world, I've seen a lot of newbies are coming up, and जितने भी आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं पे गाइडेंस जो होती है वो नहीं मिल पाती है। एंड यूट्यूब पे भी अगर आप देखोगे तो वो लोग से ये कहेंगे कि हाँ भाई ये करना है। सो मेरा आज का आपसे जो हमारा पर्पस रहेगा बात करने का यही होगा कि हाउ डू दे प्रेजेंट देमसेल्फ। सो गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड पे जाऊंगा। So, from where you have done your schooling and then graduation and then MBA? Okay, so it's a kind of it becomes Recap. like not recap, it kind of interview session then in that case. So I will not be taking in that format. I Yeah. would say that I have a upbringing in Delhi, did my graduation from Delhi University, and then graduated my MBA from Jodhpur University. So in all, I have a total work experience of 24 years. I have worked with companies like Canon, Samsung, AMD, and for the last 13 years, I am working with Panasonic. So, like in all the organizations, we have over the period of time joined, then worked hard, and then grew, and then how we have performed. So that's my profile at this point in time. So right now, as I introduced you as a business chief, we all know that we all start from an executive part. So आपने एग्जीक्यूटिव किस कंपनी से स्टार्ट की थी एंड उसकी क्या लर्निंग रही होगी आपकी फर्स्ट लर्निंग? I started my career with the Advanced Micro Devices, that is AMD, which was not that much known brand. That's a US based company who are into microprocessors, Intel competitors. That's normally at that point in time everybody used to take it. So challenges were altogether different. I was into sales, so we had to develop a channel, we had to run schemes for the channel partners. So we have to train. In today's scenario, kids might be very surprised that at that point in time, computers were assembled. They were not bought from the shops. So so we were providing microprocessors. Motherboards were coming from the different organization. CPU used to be there. So we were looking after supplies of microprocessors. And I assume कि आजकल के बच्चों को अगर डेस्कटॉप तो पता ही नहीं होगा, उनको सीधा लैपटॉप से इंट्रोड्यूस हुए हैं Yes, वो they तो। have they might have seen laptops straight away, और मे बी द iPods, or maybe iPod, iPod सीधा उनके पास ही। iPads. Yes, very true. That's Okay. it must be very surprising for them. Even today, like people, they it is very difficult for them to understand that yes, there used to be a computer which used to get assembled
Although they are being taught, like I believe they are being taught that there is a CPU, there is a monitor, there is a keyboard, but yes, as far as their ease of doing computer work is concerned, they are quite used to doing it on laptop. On laptops. Yes. Correct. Because I remember when I used to be in school, हमें तो डेस्कटॉप पता था, डेस्कटॉप को कर दे, यहाँ से माउस आ गया, यहाँ से वो आ गया. बिफोर गोइंग स्कूल वो पहले से ही अपना लैपटॉप तो उनका पहले से स्टार्ट हो जाता है. Yes. और उनको टीचर ज्यादा पता होता है iPads. कौन सा कहाँ जाना है. Very true. Very true. So मेरा इस पे एक क्वेश्चन है का, whenever people get into the jobs, एग्जीक्यूटिव लेवल पे आ रहे हैं, मैनेजर लेवल पे हायर होते हैं, what are the things they should ask their boss before going on any project? क्या उनको पता करना चाहिए जो उनको पहले प्रोजेक्ट में उनको हेल्प हो जाए? Acha. What I have understood from your question is that whenever they get any project from their seniors, so what are the questions that they should ask before starting off that particular project? They Correct. should not start upfrontly and then come back raising questions. Yeah, this is very, very important, but it totally depends on the leadership style that a senior is following. So मतलब हम इसको दो तरीके से डिफाइन करते हैं. एक होता है डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ द लीडरशिप, एक होता है दूसरा ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप. डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप में जो सीनियर होगा वो प्राइमरली आपको फ्रीडम देगा, जहाँ पे आप अब उनसे क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, अपनी सजेशंस दे सकते हो, और सजेशंस एक्सेप्ट और रिजेक्ट हो सकती हैं, राइट. सो और दूसरा है ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप. उसमें क्या है कि जो सीनियर एक्सपेक्ट करता है कि जो उसने डाउनलोड दे दिया है, यू शुड ऑब्जर्व इट देयर एंड देन, नो क्वेश्चन आर, नो चेंजेस सजेस्टेड, यू हैव टू फॉलो द रूल्स. सो यहाँ पे मैं जो न्यू जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अपने लीडर को समझना कि वो कौन सा स्टाइल यूज़ कर रहा है. क्या वो डेमोक्रेटिक है, क्या वो ऑटोक्रेटिक है, राइट. इफ़ ही इज़ अ डेमोक्रेटिक, देन इन दैट केस वो उसका स्टाइल भी कुछ आपको मैं डिफाइन करता हूँ. वो आपको एक्सप्लेन करेगा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कि ये हैं, ये ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, ये प्रोसेसेस हम फॉलो करेंगे, ये हमारे टाइमलाइंस हैं, और ये सारे टीम प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, राइट. तो ये होता है डेमोक्रेटिक. तो यहाँ पे जो टीम इन्वॉल्व है दे विल रेज क्वेश्चंस. करेक्ट. ऑब्जेक्टिव कितना है, कैसे है, क्या करना है, अलग अलग प्रोजेक्ट के अलग अलग ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और कौन कौन कहाँ कहाँ पे फिजिबल हो, कितना टाइम डिवोट करना है फ्रॉम योर रेगुलर वर्क, राइट. सो दैट इज व्हाट दे नीड टू कीप इट इन माइंड. But the moment you are into an autocratic, under a leadership of autocratic leader, then you have to be very, very cautious. You have to be very, very diplomatic, because आपने ऐसा कोई भी क्वेश्चन पुटअप किया जो लीडर इज नॉट रेडी टू लिसन, देन ही विल आउटराइटली रिजेक्ट यू, एंड वो उसकी ईगो हर्ट होगी, और साइमल्टेनियसली वो कुछ ऐसा रिवर्ट कर देगा जो आपको पसंद ना आए. सो यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक इन दैट सेंस, जो कि आपको एक फ्रीडम मिल जाती है ना डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप में, जहाँ पे आप कुछ भी बोलोगे, कैसे ही बोलोगे, ही विल स्टिल एक्सेप्ट एंड ही विल आंसर द क्वेश्चंस. सो अकॉर्डिंगली मेरी सजेशन रहेगी कि आपको ये चीज़ समझते हुए आपको अपने क्वेश्चन रेज करते हैं. दो क्वेश्चंस कैन नीड टू बी वेरी वेरी वैलिड, टाइम बाउंड, और सबसे पहला जो समझने वाला जो मेरे को ऑब्जर्वेशन में आया बीइंग अ लीडर, दैट कोई भी आपका टीम मेंबर जब वो कभी कुछ काम लेता है, तो जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन होना चाहिए वो होना चाहिए टाइमलाइंस का, कि बाय व्हेन आई हैव टू डिलीवर. देयर हैज टू बी टू लेवल्स. फर्स्ट फेज जहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट डिफाइन करके सबमिट करते हो, और उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले उसे 2 दिन पहले आपको दिखाना होता है, राइट. करेक्ट. सो पहले वो टाइमलाइंस डिफाइन होनी चाहिए, फिर आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि कौन कौन इन्वॉल्व रहेंगे. ऑल दीज क्वेश्चन नीड टू बी टेकन अप, और पहले ही पूछ लेना सबसे अच्छा रहता है. इट्स बेटर, because later on you might do all the hard work and then you realize that you were already on the wrong track, and again you have to start from the initial stages. So that will be a wastage of time. To avoid that wastage, it is always advisable to raise question, and there's nothing bad in to be an inquisitive mind. It always helps you over the period of time when you have question in your mind and you raise at the right time at the right level. That's great. I guess मेरे पास काफ़ी इस पे वो है, बट हाँ इस पे अगर हम बोलते हैं जो
हम लोग डेमोक्रेटिक के अलावा जो बोलते हैं उसको हम टॉक्सिसिटी भी बोलते हैं कई बार एक लेमैन में हम टॉक्सिसिटी को भी लेके आते हैं एंड वो टॉक्सिसिटी आई गेस कई लोग नहीं जज कर पाते हैं, कई लोग उसको सोचते हैं कि ये मे बी हमसे काम करवा रहा है, जैसे हम बोलते हैं तराशते हैं। क्योंकि मैंने खुद देखा है कई बॉसेस जो टॉक्सिक बॉसेस होते हैं वो लोग उसको एज अ प्राइड बोल के चलते हैं कि आपको हम तराश रहे हैं, तो हाउ मच इट इज फिजिबल या हाउ मच वो कितना सही चीज है उसको तराशना टॉक्सिसिटी से। A very thin line to define whether a person is a toxic or he is a pure mentor, right? A person who is trying to guide you, where are you going wrong, what best you can do, all those kind of things are there. So very thin line to say that. But one thing is very very clear: a toxic person will make your life hell. So if the other person is not making your life hell, and he is giving you that kind of guidance to improve, then you should appreciate. Okay. So that thin line, only a person who is Working with it. subservient है, वो बता रहा है कि कैसे काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ. He is the only person who can judge whether the senior is becoming toxic in his life or he is a pure mentor. Sure. So, but it's a very thin line that you have to evaluate. जब आपको लगे कि हाँ भी life hellish हो रही है, he is not very supportive, he is not understanding your situation, right? Then you can feel that things are not going in the right direction. Okay. So a person have already thought कि नहीं हो रहा है ये चीज, बिफोर स्विचिंग कि आप किसी कंपनी में स्विच कर रहे हो, तो ऐसी क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी है कि नेक्स्ट टाइम आपको वो चीज़ फेस ना करना पड़े, ना ही आपको वो चीज़ फाइनेंशियली भी एक हिट करे? I think so. The studies say that maximum people leave jobs because of their bosses. That's what the study says. But मेरा उसमें मानना ये है कि what is the guarantee of getting a decent boss in your next job? Zero. So if you are leaving this particular profile because you're not happy with your boss, or your boss is hampering your personal life, whatever be the case, but where is the guarantee that the new bosses, because boss is something that you can't select. Correct. Right? So what is the guarantee? So what I personally feel, that should not be the criteria for switching your jobs. What I feel and what I have been following it up throughout my life, करंट प्रोफाइल में मेरे लिए लर्निंग के क्या ग्रोथ है. सो मतलब आपको ये देखना है कि आप अपने करंट प्रोफाइल में किस लर्निंग कर्व में हो, विच स्टेज, वेदर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू थिंग्स, चेंज, हैव मोर चैलेंजेस, देन इट्स ऑलवेज गुड टू स्टे विद दैट कंपनी. और जब आपको लगे कि आप लर्निंग कर्व में बहुत लोएस्ट लेवल पे चले गए एंड यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी लर्निंग इन द करंट company or current profile, then it is always advisable to change immediately, because then your importance within the organization or importance for yourself, आपको अपने आप को लगने लग जाएगा कि what am I doing. करेक्ट. मतलब मैं यहाँ पे इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही है या मेरे लिए सीखने के लिए कुछ नहीं है, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि यू शुड स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर एन ऑप्शन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन. बट आपको नई ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको देखना चाहिए कि उस कल्चर, जैसे आपने कहा कि दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. और जो आपने सेकंड पॉइंट बोला कि वेयर एम आई गोइंग टू गेट बैकअप, तो उसको मैं ये कहूँगा यू शुड हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ. You will definitely be able to perform in the next organization also. There is nothing to worry about. Yes, but that's a right way of thinking also. I'm not saying it's wrong. But आपको ये देखना कि अगली कंपनी में आपको क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे. इट इज नॉट, इट माइट बी पॉसिबल दैट करंटली यू ग्रो बट यू जॉइन सम प्रोफाइल जहाँ पे आपको ग्रोथ ही ना मिले. तो देन अगेन आफ्टर 2 years, 3 years, 4 years down the line, you will again start thinking कि where am I sitting? I'm not getting growth over here. तो आपको देखना चाहिए कि मुझे आगे जाके लर्निंग प्लस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या आएंगी. दैट्स. और जैसे वो कहते हैं ना 3 Idiots में कि आप एजुकेशन लो, सक्सेस हो जाओ, तो सक्सेस तो अपने आप पीछे आएगी, समथिंग लाइक दैट. झक मार के पीछे आएगी. झक मार के पीछे आएगी. So you put your efforts, you put 100% of your efforts in the work that is there in your hands, and definitely you will definitely succeed. तो सक्सेस आपको झक मार के पीछे आएगी.
सो हरदीप, ये बड़ा बड़ा कॉमन एक मिथ रहता है हमारे उसमें, मतलब न्यू मैनेजर्स में, कि मैनेजर बनते ही आपकी लाइफ या तो हेल हो जाएगी, ऊपर से भी पड़ेगी, नीचे से टीम टीम भी मारेगी। तो एक तो प्रोफेशनल लाइफ आपकी बैलेंस, हाँ। दूसरा उसके साथ पर्सनल लाइफ बैलेंस। हम्म। अब यहाँ तक आप पहुंचे हो, आई ऑलरेडी हैव अ 24 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आपने पूरी लाइफ इसमें कॉर्पोरेट में भी गुजार ली है और साथ में आपने अपनी फैमिली बना ली। सो आपने उसको बैलेंस कैसे करा? मैं coincidentally, I just 2 days back I saw a video, some maybe podcast or maybe interview of Indra Nui, ओके। the PepsiCo head, right? So she was of the view there is no work-life balance like anything. So what she said that what you're trying to say is that you normally work-life balance लोग क्या कहते हैं कि आपने 8-10 घंटे अपनी काम में को दे लगाए, दिए। तो जब आप घर आओ तो आप अपना काम छोड़ के आओ, राइट? और घर पे आके आप काम ना करो, आप अपनी फैमिली को टाइम दो. But to some extent, I may be wrong. I don't know, but Indra Nooyi was right on saying that one because she gave an example also. The example was like this: that her daughter came to her and said that there is some project that she has to submit in her school, और she was lined up in lot of meetings. So in any case, वो रात को 7 बजे उसने जाके inform किया. So then she requested one of her colleague that this is a project which my daughter has to submit, and that colleague helped her out in that particular project. When she reached home, she was able to support her daughter also in her project. ओके। Now the point she maintained that I was, with the help of my colleague, I was able to manage my work also, because in any case she was not having an opportunity to go back home, right? And when she will reach home, it will be too late to prepare that project. So she took the help of her colleague, right, and got the things done. What I'm trying to say is that again, it is very difficult to put a stop that, oh, 7 बज गए हैं, 8 बज गए हैं, अब मैं ऑफिस का कोई काम नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ फैमिली देखूंगा. और ड्यूरिंग दी डे व्हेन आप ऑफिस में होते हो तो आप ये नहीं कह सकते कि अब मैं फैमिली को नहीं देखूंगा, मेरे फैमिली का कोई कॉल नहीं आना चाहिए, आएगा तो मैं बात भी नहीं करूंगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है. सो यू हैव टू सी द बैलेंस. आपको कई बार अपने घर के काम के लिए आपको ऑफिस से छुट्टी लेके जाना पड़ेगा आपको, लेकिन उस छुट्टी पे जब जा रहे हो तो आपको कई क्वेश्चन, ऑफिस का काम। कई आंसर्स भी देने पड़ेंगे फ़ोन कॉल्स के, बिकॉज स्पेशली मतलब आज जैसे लीडरशिप पोजीशन पे अगर आपके आते हैं तो आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं. वो डिसीजंस आपके एंड पे ही पेंडिंग होते हैं. इवन व्हेन आई एम विद द फैमिली, देयर माइट बी सर्टेन कॉल्स विच आर रिक्वायरिंग डिसीजंस टू बी टेकन, और वो मेरे अलावा शायद कोई डिसीजन ले नहीं पाएगा, और या फिर कोई ऐसा डिसीजन जो सीनियर मैनेजर से लेना है तो वो भी मैं ही जाके लेकर आ सकता हूँ, कोई और नहीं ले सकता. सो ड्यूरिंग फैमिली टाइम यू हैव टू टेक time out, 15-20 minutes, resolve those issues, get it solved, give it back to the team so that they can work it out. और simultaneously during the tenure of your office hours, कोई ऐसा काम हो सकता है जो फैमिली रिलेटेड होगा जो आप करके निपटा के आ सकते हो. तो आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से बैलेंस मेंटेन करना है. इट इज़ वेरी रॉन्ग टू से दैट कि 8 बज गए हैं, टाइम अब ऑफिस का ख़त्म, अब मेरा फैमिली का स्टार्ट होता, तो आई विल नॉट बी गिविंग टाइम टू ऑफिस वर्क. That is, I personally don't feel that it is. तो आई गेस जो आप कह रहे हो, जो हमारा ट्रेडिशनल वाला था कि 8 बजे की 8 से 9 से 5 की जॉब करके उसके बाद घर का काम किया, वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है. अब जो नया वर्क लाइफ बैलेंस है कि ऑफिस के काम भी घर से हो सकते हैं, मतलब घर वालों के साथ काम के साथ भी हो सकते हैं, और घर पे भी कोई कॉल आए तो वो भी फॉर टाइम बिंग हमें उठा के उसको सॉल्व करके वापस करना पड़ेगा, बिकॉज वही एक वर्क लाइफ बैलेंस बनेगा. Personally feeling, although I have different views which might not be matching up कि भाई why should I take official calls during my personal time, काफ़ी लोग करते भी हैं, तो but there might be certain situation which requires urgency. और अगर आप कहो कि outrightly no, I will not take that call, so that is also not acceptable, because आपका over the period of time हो सकता है आपके उसका होल्ड करने की वजह से डिसीजन कुछ डिलेज हो जाए, कुछ लॉसेस हो जाए. टू अवॉइड दैट, इट इज नॉट बैड टू गिव 5-10 मिनट्स टू. ओके. सो इसमें मतलब एक बड़ा कंट्रोवर्शियल है कि यहाँ पे हम ऐसा प्रूफ नहीं कर रहे हैं कि ये करना जो सही है या ये बिल्कुल सही है, नहीं.
बट यहाँ पे लोग ये भी बोलेंगे यार हम इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर कोई ऑफिस से हम छुट्टियों पे हैं फिर भी कॉल आ रहे हैं, उसको जस्टिफिकेशन हो रही है, ऐसा भी लोग बोलेंगे ये चीज़। फिर तो उसको कैसे हम कर सकते हैं? हाँ, आप देखो इसमें एक एक जो मैं फॉलो करता हूँ कि जब मैं अगर छुट्टी पे जा रहा हूँ जहाँ पे शायद मैं रीचेबल नहीं होऊंगा या फिर आई माइट बी गिविंग डिलेड रिस्पॉन्स, तो भी जैसे हम देखते हैं ईमेल्स में भी मैसेज आता है, वी इन्फॉर्म द टीम दैट यू नो आई एम आउट, आई विल नॉट बी एबल टू आंसर, you raise your points to one particular person who is like you know second in command. अगर second in command का अगर क्वेश्चन अगर आया था तो then in that case there is यू something हैव which टू, is not able to करेक्ट। get sorted at their end. आप इतना तो एटलीस्ट कर सकते हो। एंड आई गेस इसमें एक इसका भी एक फ्यूचर में भी अगर मैं देखूँ, लेट्स सपोज अगर मैं आप छुट्टी पे हो फिर भी आप काम कर रहे हो, तो समहाउ इन वर्क लाइफ बैलेंस है, ये बैलेंस कर रहा है, छुट्टी पे भी काम कर लेता रादर है, वो उसको ये बोलेंगे ही इज डेडिकेटेड टुवर्ड हिज वर्क, कि यार मोर छुट्टी देन पे होते हुए भी कम से कम, काम कर मैं रहा है। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप छुट्टी पे होते हुए काम कर रहे हो, हम्म। आप छुट्टी पे रहते हुए कुछ ऐसी कॉल्स, कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो आपके से 5 10 15 मिनट या आधा घंटा ले रहा है, एंड द थिंग्स आर गेटिंग सॉर्टेड बिकॉज अदरवाइज वो डिले हो सकते डिले हैं हो एंड इट जाएंगे। मे incur some losses to the organization for which you are working. That's good. Okay, that's a good insight, I guess. And maybe we are not justifying the work-life No balance way, like I'm this. not saying It's that you know just कि how आप to करो. balance it out. Yes, उसको कैसे बैलेंस आउट कर सकते हैं, ना यहाँ काम इफेक्ट करे ना ही आपके घर के ऊपर कुछ इफेक्ट yes. आए, दोनों का भी काम है। अब अगर मैं बात करूँ इसके साथ, जो नए न्यूबीज होते हैं, न्यू मैनेजर्स होते हैं, अब कई बार क्या होता है एग्जीक्यूटिव लेवल से फर्स्ट टाइम मैनेजर्स बने हैं, अब मैनेजर बन तो गए हैं बट उनको नहीं पता होता कि यार हाउ टू जस्टिफाई देयर वर्क टू द मैनेजमेंट। एंड ऑब्वियसली अगर आप टीम में से ही उठ के आए हो तो देयर वुड बी मोर पियर्स जो आपसे जेलस भी होंगे, तो उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं? या अपने काम को भी अच्छा दिखाना है, पियर से काम भी निकलवाना है, और आगे और प्रमोशन के लिए भी जाना है। I must appreciate this is one very important question क्योंकि I also grew, right, wherein like you know there were certain peers, out of that I got selected. Yes, it's a challenge और यहाँ पे मैं कहूँगा आपका communication skills matter. जो पहले आपके colleagues थे, now they are juniors to you, so you have to know how to get things done from them और उनको ये पहला मैसेज देना दैट यू नो ठीक है देर आर सर्टेन चेंजेस और वी हैव टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप सो दैट बोथ ऑफ देम कैन वर्क कोहेसिवली. वन ऑफ द फैक्टर जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं फील करता हूँ, जो you know people who have new managers now, they have team, previously they were working as executive level, so the major difference, you know, the you know you being sitting on the one side of the table and then you are shifting to the other side of the table, what I have observed is that at an executive level you are primarily following the orders, you are given certain instructions, you have to deliver the results basis that, but the moment that changeover happens आप decision maker बन जाते हो because those questions will be coming to you and you have to take a call, you have to take a decision, you have to guide the team. So करेक्ट। that's the biggest difference I have seen. So one has to learn कि पहले वो हमेशा सोचता था कि ठीक है अब मैं यहाँ कंफ्यूज यहाँ फंस गया हूँ, चलो ठीक है मैं अपने सीनियर से पूछ के आता हूँ और आंसर देता हूँ, बट अब वो जब खुद सीनियर हो गया तो नाउ ही हैज़ टू टेक दैट कॉल कि क्या डिसीजन ठीक रहेगा. और जैसे हमें मैनेजमेंट में पढ़ाया भी जाता है लाइक मैनेजर्स हैव टू टेक डिसीजंस इन अनसर्टेन कंडीशंस, उनके पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, दे हैव टू यू नो इंक्विजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, जैसे मैंने बोला आप रेज करो क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड करो एंड देन गिव द आंसर्स. So that's the biggest change what I feel, person shifting from being an executive to being manager. Being a manager. Okay. So, is there any some set of questions or pointers, not questions or pointers, कि अगर कोई फर्स्ट टाइम मैनेजर बन रहा है अपनी मैनेजमेंट में या अपने ऊपर जो उनके बॉसेस हैं उनको वो अपने काम को कैसे प्रूव करें, किस तरीके से उसको रखें, या मे बी इन सेंस ऑफ डेटा या इन सेंस ऑफ प्रमोशंस की, जब हम प्रमोट होने जा रहे हैं यार हम एक और प्रमोशन डिजर्व करते हैं, वो ऐसे क्या चीज़ें रखें या क्या चीज़ों का ध्यान रखें कि वो कुछ टाइम करने से पहले स्टार्ट हो जाए एंड उनकी जो इमेज है मैनेजमेंट में, एक उसको उनके ग्रोथ को, उनके रोल को और एक्सपेंड करने में काम आए। Yes,
वैसे ये तो बेसिक लर्निंग सबको हो जाता है मोमेंट दे बिकम मैनेजर्स, और जब वो सीनियर मैनेजर को जा रहे होते हैं अपने उसमें देने के लिए, सो उनको पता लग जाता है कि मैनेजमेंट इज टोटली दे हैव गॉट अ वेरी वेरी लेस टाइम, यू नो दे हैव गॉट अ वेरी लेस टाइम। सो यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, डेटा एनालिटिक्स, राइट, और प्रेजेंटेशन कैसे करते हो विद इन 1 स्लाइड, 2 स्लाइड, 3 स्लाइड, बिकॉज आपके पास आपको मतलब 1 आवर मिलना मैनेजमेंट का इज वेरी वेरी टफ टाइम। तो आपको वो 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी टाइम आपको मिला है उसमें आपको, और मैनेजमेंट इज ऑल्सो वन वन वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट management is not looking for questions, they are looking for answers। तो आपको अपना ये शो करना है कि क्या क्वेश्चंस हैं मैनेजमेंट के, एंड व्हाट आर द प्रपोजल्स फ्रॉम माय साइड व्हिच इज दिस रेजोल्यूशंस, एंड देन out of those 3 4 options which I am opting for, which is the decision that I am going to take. That shows your confidence that you have analyzed the problem properly, and you're not only a problem giver, you are problem solver also simultaneously, and you have a confidence that you will be able to deliver that. So these 3 points you have to take care of. मैनेजमेंट से आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, सो इट हैज़ टू बी क्रिस्प एंड क्लियर। आपको अपने कम टाइम में आपको अपनी प्रॉब्लम भी बतानी है, सॉल्यूशंस भी बताने हैं, और आप कौन सा सॉल्यूशन फॉलो कर रहे हो वो भी आपको बताना है। सो इसमें बस मेरा एक एक बड़ा पॉइंट है इसमें, एक मैनेजमेंट में सिखाते हैं, मतलब ऑन दिस वे मेरे को पता लगा, नो योर ऑडियंस। अ लॉट ऑफ पीपल हैव सीन कि जो मैनेजरियल लेवल पे हैं एंड दे हैव अ गुड नॉलेज, बट उनको अपनी ऑडियंस नहीं पता, चाहे वो सीनियर मैनेजमेंट के आगे हो या चाहे वो अपने पीयर्स में हो या उनके जूनियर्स में भी, वो एक प्रॉब्लम को लंबा करके ही बताते हैं एंड देन एंड वो ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ देते हैं। सो ये मैंने बहुत सारे मैनेजर्स, आई एम नॉट श्योर कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन फेसिंग दिस, बट मैंने ये खुद फेस किया कि बहुत सारे ऐसे मैनेजर्स हैं जो ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ देते हैं अपने पीयर्स के लिए या अपने जितने भी उनके मैनेजर्स हैं उनके लिए। सो अगर वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है उनके इमेज के ऊपर कि ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ देने का। अगेन आई विल गो बैक टू सेम थिंग, देयर आर 2 स्टाइल्स। अगर जो क्वेश्चन छोड़ रहा है अपने पीयर्स के लिए कि भाई यू आंसर दैट, ही इज अ डेमोक्रेटिक लीडर। व्हाट ही इज ट्राइंग टू एक्ट एज एन मेंटर, सो दैट वो कह रहा है वो आपकी सिचुएशंस को समझ के अगर वो सीधा आंसर दे देगा, तो दिस इज नोन एज स्पून फीडिंग। करेक्ट। कि भाई आप आए सोल्यूशन ले ढूंढते हुए, और मैंने आके आपको सोल्यूशन दे दिया। सो देन नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू विल हैव अ प्रॉब्लम, अगेन यू विल कम बैक टू मी विद अ प्रॉब्लम सो दैट आई कैन सॉल्व इट। बट अगर मैंने आपको आपके आंसर्स दे दिए तो आप हमेशा मेरे पास लेकर आओगे कुछ, बट अगर मैंने आपको ऑप्शन दे दी कि दीज आर द 2 3 ऑप्शन यू कैन सिलेक्ट, तो देन यू लाइक एज एन एम्प्लॉय you are putting some efforts to evaluate those options and take the best option. तो ये डेमोक्रेटिक स्टाइल हो गया, विच आई बिलीव इन द बिगनिंग यू सेड कि हाँ भी दैट इज द मोस्ट ऑप्टेड वन। तो ये वहां पे कहीं फिट बैठता है। अगर कोई ऑटोक्रेटिक होगा लीडर, तो वो सीधा आंसर दे देगा ये कर लो, एंड देन यू विल, एंड देन employees, team members under autocratic, they don't have freedom, so they will not be looking out for options, they will always come with the problem so that you can solve it, and then they will go back. So again coming back to the same point कि आपका लीडरशिप स्टाइल क्या है, यू अंडरस्टैंड द लीडरशिप स्टाइल एंड उसके बाद आगे आप सारा उसमें। and one of the very important factors that a true leader is one who can delegate. डेमोक्रेटिक वाला जो होगा वो हमेशा डेलीगेट करेगा, ऑटोक्रेटिक वाला जो है वो डेलीगेट नहीं करेगा। अगर आप डेलीगेट नहीं करो देन यू आर नॉट अ लीडर। ओके, यू आर जस्ट अ टॉक्सिक वन, सारा मेरे क्रेडिट में खुद ले जाओ, काम भी कर दूं। नॉट टॉक्सिक, बट अगर आप मतलब अगर आप उनको ऑटोक्रेटिक वे में आंसर दे रहे हो तो मैं डेलीगेट नहीं कर रहा हूँ अगर, देन इन दैट केस आई एम नॉट अ लीडर, बिकॉज देन माय मैक्सिमम टाइम विल बी solving the issues coming back to me. So I'll be left with very little time for my strategy for future. I was about to come That on is the 2 important factors that is required from a leader, that he has to carry out day-to-day activities also simultaneously he has to take time out for future references also, future strategies also.
I was about to come how to think on it. So I guess आपने उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर ही दिया उस क्वेश्चन को कि how to think about the future, being on a managerial thing. Obviously day to day तो coming to the end, अब इसमें coming to the end कि आजकल जो हमारे न्यूबीज हैं या अभी जो लोग कॉर्पोरेट में आना शुरू हो चुके हैं, उनमें बहुत सारे लोग, जैसे भी एग्जांपल लेता हूँ, सो इन द एंड मैं जो हमारे न्यूबीज हैं, जो हमारे अभी अभी कॉलेज से आ रहे हैं, एंड ऑब्वियसली उनको इतना नहीं होता कि इतने हैप्चुअल नहीं होते हैं वर्क प्रेशर के। जो भी रिसेंट केस हुआ ईवाई में, जो एक गर्ल का सुसाइड हुआ एंड ड्यू टू वर्क प्रेशर, तो व्हाट आर थिंग्स यू वांट टू सजेस्ट देम कि वो वर्क प्रेशर तो हर जगह रहेगा, चाहे जैसे हमने एग्जांपल लिया कि नई कंपनी में जाओगे तो गारंटी नहीं है कि नया बॉस अच्छा मिल वेरी जाएगा, ट्रू। बट उसको कैसे हैंडल करें एंड हाउ दे शुड नॉट गेट दैट मच ऑफ स्ट्रेस ऑन देयर माइंड, उसको कैसे ठीक करें अपने आप को। I think so. Uh, the best way to, you have to try and find out your stress busters. That's what I normally say. Stress busters हमें होने चाहिए. uh, you can play sport, you can have friends, you can go out with your friends, you can watch movies. इससे आपको कुछ हद तक आपको अपना स्ट्रेस कम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और वर्क प्रेशर तो रहेंगे ही रहेंगे, राइट? तो एट द सेम टाइम the leaders also have to think that how much stress or how much pressure they can give, और over the period of time चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। शायद हमारे टाइम पे जो हमने स्ट्रेस लिया है, हमें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा था। हमारे से पहले जो हमारे थे उनका स्ट्रेस लेवल एक एक लेवल का होगा, टफ टाइम्स रहे होंगे उनके। तो और मे बी इट मे डिपेंड फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से और रॉन्ग टू से कि हमने तो स्ट्रेस लिया बहुत ज़्यादा, आज की जनता नहीं ले पा रही है, आज के बच्चे ले रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। हमारे टाइम पे भी कोई रह गया होगा जो आज हमें नहीं याद होगा, कि कोई स्ट्रेस नहीं ले पाया होगा कोई एक। तो इट डिपेंड्स सोली ऑन इंडिविजुअल्स। बट मेरी सजेशन है, हुएवर इज द इंडिविजुअल जो कि फेस कर रहा है स्ट्रेस, इज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट स्ट्रेस लेवल, सो ही शुड टेक द हेल्प ऑफ ईदर डॉक्टर, फ्रेंड्स, और अपना टाइम थोड़ा सा डिवोट करे स्पोर्ट्स की तरफ, तो दे कैन रिड्यूस द स्ट्रेस लेवल। बट वेर एवर वेन एवर यू फील, आज के हमारे नंबर ऑफ डॉक्टर्स लुकिंग आफ्टर दिस स्ट्रेस हैज़ गॉन हाई। आज तो आपके कई कॉल सेंटर्स चल रहे हैं ऑन दैट बेसिस। तो इट्स एडवाइजेबल वेन एवर यू फील yes there is something which you are not able to sort out, then definitely you should be open to take the help of others. That's something I would like to say, that you should not hesitate in taking the help of your friends Correct. or doctors. पीपल डू हेजिटेट व्हेन दे थिंक कि नहीं यार, लोग क्या कहेंगे, क्या काम कब नहीं ले पा रहा। सो आई ट्रूली एग्री ऑन इट, आई टोटली एग्री कि टोटली डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल्स कि वो लोग कैसा आपका कितना एक जिसको हम बोलते हैं कितना घड़ा है, कितना भरेगा, वो हर किसी का अपना अपना है, अपना अलग है। अपना अपना अलग है। जस्ट कि हाउ मच कैपेबिलिटी यू हैव, एंड मोर ओवर इन माई सेंस, इफ यू थिंक कि नहीं हो पा रहा, वी शुड आल्सो know or how to where to say no, how to stop and where to stop. Yeah. अगर ज्यादा आ रहा है तो यू शुड बी एबल टू से नो कि बस अब हो गया। आई गेस कॉर्पोरेट्स में बहुत ज्यादा बेचा जाता है कि यार जितना हार्डवर्क करोगे उतना सक्सेस तुम्हें मिलेगा, वो भी एक मिथ है मेरे हिसाब से। That's a myth. Smart work is more important. हार्ड वर्क इज नॉट इम्पोर्टेंट। मैम आप इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट, बट अगर आप हार्ड वर्क विदाउट पुटिंग एनी माइंड लगाओगे तो फिर यू विल नॉट बी एबल टू रीच एनीवेयर। सो you have to put your mind out. So there should be a combination of hard work and smart work. Yes. So that आपकी mental health भी ठीक रहे, Yes. काम भी पूरा हो जाए, and you're able to grow much. Yes. Very true. Hope. Thank you very much, Hardeep, for this very good insights, and maybe this will help a lot of peers to grow in the organization. I hope no one will take that kind of step again कि जो अभी very sadly लिया एक ने, but आगे से आप सारे उस चीज़ को एक फोकस करोगे एंड अपना स्ट्रेस बस्टर्स, जैसे अभी अदिति ने बोला कि स्ट्रेस बस्टर्स बहुत ज़रूरी हैं, सो टेक दो स्ट्रेस बस्टर्स एंड अपनी लाइफ अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकालो। सो
we'll meet you in the next podcast. नया सीखें